جی ٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو بہرحال پاکستان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے بارڈرز کے اندر، اور وہاں افغان طالبان جو ہیں ان کو یا تو وہ ہاف ہارٹڈ ہیں یا ان کی بھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اچھا سر، آج کل ایک بڑی چل رہی ہے ٹسل پاکستان تحریک انصاف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ری سیٹلمنٹ کی طالبان کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو آرمی نے کیا سیٹلمنٹ. یہ اس میں حقیقت کیا ہے سر؟ اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، اور پھر ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو پچھلی غلطیاں کی ہیں، جس طرح اس طرح کے مجاہدین کو ہم دودھ پلاتے رہے ہیں، ان کو جو ہے پنپتے وہ بڑا کرتا رہے ہیں، ان کو مدد کرتے رہے ہیں. جو افغان عبوری حکومت ہے طالبان کی، ان کی مذاکرات کے بارے میں یا اس مسئلے کو وہ سیریس بھی لیتے ہیں، سنجیدہ لیتے ہیں، اس مسئلے کو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر خواہش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب آصف درانی صاحب، سابق خصوصی نمائندہ برائے افغانستان، افغان امور کے حوالے سے ایک اتھارٹی ہیں، ان پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ اس وقت ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کافی لو پہ ہیں. اور آج ہی وزیر اعظم نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سرحد پار جو دہشت گردی ہے اور سرحد پار حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں، اور فتنہ الخوارج کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ کہ افغانستان کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن فتنہ الخوارج کا جب انہوں نے ذکر کیا تو اس کا مطلب یقیناً افغانستان ہی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ کتنی سنجیدہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو وزیر اعظم نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ بہرحال ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے، اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ پلس جو افغان طالبان ہیں وہ بھی اس ٹی ٹی پی کی تشکیلات میں ان حملوں میں شامل ہو جاتے ہیں پاکستان کے سرحدی علاقوں پہ. تو اس سے ظاہر ہے بدمزگی پیدا ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کا وجود اگر بہت پہلے سے تھا، لیکن جب سے افغان طالبان حکومت میں آئے ہیں اگست 2021 سے، تو اس وقت سے یہ صورتحال بہرحال خراب ہوتی گئی ہے. اور جو اسٹیٹسٹکس بذات خود بڑے ریویلنگ ہیں، یہ جو سوسائڈ اٹیکس ہیں، ٹی ٹی پی کے اٹیکس ہیں، ان میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ ریسنٹلی جو ڈان کی رپورٹ ہے اسماعیل خان صاحب کی، تو اس کے مطابق تو تقریباً 280% اضافہ ہوا ہے خالی لاسٹ ایئر 2024 میں. تو یہ الارمنگ صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی مملکت، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک اس طرح کی بدامنی برداشت نہیں کر سکتا. جی سر، آپ مذاکرات کا حصہ بھی رہے ہیں، مذاکرات کی جو اس سے پریوی ہیں اس حوالے سے کہاں پہ ڈیڈ لاک ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ کن معاملات، کون سے معاملات ہیں جو طے نہیں ہو پا رہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سچویشن میں فیکٹرز کنٹرول میں نہ ہونا جو ہے وہ بہت بڑا سبب بن جاتا ہے کسی بھی مذاکرات کی ناکامی کا. ٹی ٹی پی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو بہرحال پاکستان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے بارڈرز کے اندر، اور وہاں افغان طالبان جو ہیں ان کو یا تو وہ ہاف ہارٹڈ ہیں یا ان کی بھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کر سکیں. یہ ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے. یہ اب شومے قسمت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو بنانے میں ہمارے ہی لوگوں کا دخل تھا، ان کو آفیشل پیٹرنیج رہی ہے. تو اب یہ ہمارے لیے ایک مانسٹر بن گئے ہیں. تو میرے نزدیک ان پہ جو ہاتھ ڈالنا ہے وہ پہلے ہمارے بارڈر کے اندر جو
जिनकी सेंचुरीज हैं उनको जब तक आप ड्राई आउट नहीं करते, उनको स्मोक आउट नहीं करते, जी, जी। वो बाहर अफ़गानिस्तान से अगर वो हमला करेंगे भी तो गैर मौसर होगा कि हुँ, अगर हुँ। हम यहाँ पे उनको ग्राउंड्स अवेलेबल ना होने दें, यहाँ पे लोग जो उनको पनाह ना दें, यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस सिस्टम और ख़ासकर जो लोकल पुलिस है और फिर जो मकामी आबादी है और पॉलिटिकल ओनरशिप है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे आप इनका तदारुक कर सकते हैं। जी। अच्छा सर ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज जो उनका बयान आया है उससे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम बिल्कुल जंग के दहाने पे खड़े हैं या जंग शुरू होने वाली है। आपको भी ऐसा लगता है सर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं पता वज़ीर-ए-आज़म साहब के ज़राए जो है वो ज़्यादा अहम होंगे, या तो वो सीधी तरह बता दें फिर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में कोई नई बात नहीं है। हुँ, मैं पहले हुँ। भी एक आध इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि ज़ाहिर शाह के टाइम में भी इस किस्म के मसाइल उठते थे, उसके बाद दाऊद के टाइम में भी रहे। जी, फिर जी। जब कम्युनिस्ट आ गए उस वक़्त भी ये बॉर्डर पे ये मसले रहे हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर एक जो है बड़ा यूनिक बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। जी, जी। अफ़गानिस्तान के 5 और नेबर हैं, वहाँ पे ये कबायली लोग उस तरह से बॉर्डर पे नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में हैं। और जी, जी। फिर इसी तरह हमारे बाकी जो 3 नेबर्स हैं उनके साथ हमारा ये मसला। तो एक हुँ। पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान का एक कॉमन एथनिसिटी की वजह से प्रीडोमिनेंटली पश्तून हैं। उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो उसमें जो है खराबियाँ आ जाती हैं। अब इसका क्या किया जाए कि 45 साल पहले हुँ, अफ़गानिस्तान में हुँ। जो सोवियत यूनियन की फ़ोर्सेज़ आ गए, उससे पहले कम्युनिस्ट आ गए, तो उसने डिस्टर्ब कर दिया एक स्टेटस को और जी, उसके जी। नताइज हम आज भी भुगत रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल। अच्छा सर ये अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें हुई वाखान कॉरिडोर को लेके कि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है। बाज़ लोगों ने कहा जी कि वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान लीज़ पे लेने जा रहा है। आपकी इत्तलात क्या हैं इस हवाले से? नहीं, ये तो ऐसे ही है, लग़्व है ये, बकवास है बिल्कुल। ये सोशल मीडिया ने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया है गोया पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान में कल जंग हो जाएगी, मैं ये नहीं समझता और ये इसके सबसे बड़ा कल्प्रिट भी सोशल मीडिया है। हुँ, ये हुँ। हैजानी कैफ़ियत पैदा करने का। हुँ, इसलिए हुँ। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो सोबर एलिमेंट्स हैं वो इसको अलग-अलग इसको रिजेक्ट करें और हुँ, ऐसी हुँ। अफ़वाहों को जो है वो शुरू में ही उनपे जो है कलअ-कमा कर दिया जाए ताकि ये गलतफ़हमियाँ पैदा ना हों और हुँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हुकूमत के हर सतह पर इसकी मज़म्मत की जाए। जी, बिल्कुल ठीक है। उसमें सर एक मसला ये है कि जो ऑफ़िशियल वर्ज़न है फ़ॉरेन ऑफ़िस से जारी होता है या गवर्नमेंट की तरफ से वो आते-आते बड़ी डिले हो जाती है और फिर उस वक़्त में काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है, काफ़ी सारा झूठ फैल चुका होता है। वो बात ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंसिडर्ड व्यूज़ कन्वे करती हैं, जब तक वो जी, लोग एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट्स का, जी। सिर्फ़ खाली पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, सारी दुनिया में जो है, जो हुँ, हुँ। गवर्नमेंट्स हैं वो रिएक्ट करती हैं कुछ वक़्त के बाद। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया है इसमें तो हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, वो अपना एक ओपिनियन जो है फ़ौरन शूट कर देता है, तो वो जी, इसलिए जी। हमें ये देखना पड़ेगा और इसको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और इसका तदारुक भी करना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, आजकल एक बड़ी चल रही है टसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और डीजीआईएसपीआर के जो स्टेटमेंट आई उसके दरमियान उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने रीसेटलमेंट की, तालिबान की और ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो आर्मी ने किया सेटलमेंट। ये इसमें हकीकत क्या है सर? मैं इसके बारे में मालूमात नहीं रखता हूँ हुँ, और हुँ। दूसरा ये कि मैं इसके कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। हुँ, ये हुँ। मुझे ज़ेब नहीं देता कि इस किस्म की जो बातें होती हैं, ये जी, जी। नहीं, आई डोंट वांट टू सब्सक्राइब टू दैट, ये नॉनसेंसिकल है। हुँ, 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 हुँ। आप सर क्या समझते हैं कि इस मसले का पायदार हल क्या है? ये देखिए इसके लिए पेशेंस और परसिवरेंस का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा। ये तो हुँ, चलेगा हुँ। ये
एक दिन में तो मसला ये हल होने वाला नहीं है और ना ये एक दिन में ये मसला बना था। हुँ, पिछले हुँ। 45 साल से हम भुगत रहे हैं जी, जी, और जी। इसमें हमें अपने जो है सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। हमको वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और हमने देखना होगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं और फिर हमें ये सबक सीखना होगा कि हमने जो पिछली गलतियाँ की हैं, जिस तरह ये इस तरह के मुजाहिदीन को हम दूध पिलाते रहे हैं, इनको जो है हुँ, हुँ। पनपते वो बड़ा करता रहे हैं, उनको मदद करते रहे हैं। तो ये इन चीज़ों में लेसन लर्न्ड ये है कि ऐसे चीज़ें ना की जाएँ। ये हुँ, हमारे लिए बहुत और इसी तरह ये जो टीटीपी का कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर भी आपको मुल्क के अंदर वो फ़ज़ा पैदा करना होगा कि हर कोई टीटीपी के साथ नफ़रत का इज़हार करे। जी। ये अच्छा इसकी सर। वजह हुई थी, मालाकंड में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने एक खातून को कोड़े लगा रहे थे, ये मौलाना रेडियो और ये इन लोगों का। तो आप हुँ, देखिए वो काया पलट गई। तो ज़रूरत इस हुँ, बात की है कि आप टीटीपी को भी एक्सपोज़ करो। टीटीपी जी। को एक्सपोज़ करने के मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी इक़दामात किए गए हैं, जिससे हुँ, हुँ, लोगों की ज़हन जो है वो ही हो कि ये कौन लोग हैं? ये हुँ, ठग हुँ, लोग हैं, ये लोगों को जो है वो बदमाशी के ज़रिए लोगों पे वो करना चाहते हैं, अपना रूल कायम करना चाहते हैं। ये हुँ, हुँ, बदमाशी के ज़माने चले गए हैं, आज के दौर में कोई उसको नहीं मानता। तो इसलिए ये हुँ, और ये खौफ की फ़ज़ा से वो क्या साबित करना चाहते हैं? किस किस्म हुँ, का हुँ। रूल करना चाहते हैं? कौन-सा इस्लाम की ये बात करते हैं? इन लोगों को खुद तो इस्लाम के बारे में पता नहीं है, तो ये इन चीज़ों को एक्सपोज़ करना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है तालिबान की, उनकी मुज़ाकरात के बारे में या इस मसले को वो सीरियस भी लेते हैं, संजीदा लेते हैं इस मसले को, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनके अंदर ख़्वाहिश है? मेरे नज़दीक इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, हुँ, हुँ। वो चीज़ों को टालना चाहती है। हर चीज़ हुँ, पे वो हुँ। टाल रहे हैं। हुँ, वो हुँ। लड़कियों की तालीम पे भी वो कह रहे हैं हम पॉलिसी बना रहे हैं। पिछले साढ़े 3 साल से तालीम पे वो हुँ, बन रहा है। हुँ। हुँ, अब हुँ। एक आप समझिए एक पूरा जनरेशन जो है गुज़र जाएगी, उसमें जो है लड़कियाँ तालीम नहीं कर पाएँगी, ना डॉक्टर बन सकेगी, ना दूसरे जो है शोबों में आ सकेंगी। तो हुँ, मुल्क का हुँ। बनेगा क्या? बिल्कुल। मतलब हमारा भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, कॉमन एथनिसिटी है, तो एक उधर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग इसी तरह मज़ाक़ात की मेज़ पर वो मेरा अंदाज़ा ये है कि वो लोग जो हैं, वो मामलात को टाल के वो समझते हैं ये ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड के ज़रिए वो हुँ, हुँ। शायद ये मसाइल ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए हुँ, मिलिटेंसी करना, जंग करना कुछ और बात है। हुँ, उसमें हुँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आप हमला करते हैं अपना टारगेट जो है वो मार के उसके बाद भाग जाते हैं। जी, आप जी। पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे आप उसमें कोलैटरल डैमेज भी हो, तो आप कहते हैं अल्लाह की रज़ा है। हुँ, लेकिन अब तो हुँ। आप हुकूमत में हैं और उसमें आप हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। आप मुल्क के बिल्कुल। अंदरूनी हालात के भी ज़िम्मेदार हैं और बाहर के भी ज़िम्मेदार हैं। हुँ, और हुँ, हुँ। इनको तालिबान हुकूमत को ये भी करना होगा कि पाकिस्तान के साथ एक ख़ुसूसी ताल्लुकात हैं, कॉमन एथनिसिटी की वजह से, जो उनके बाकी 5 नेबर्स के साथ उस तरह नहीं है। तो हुँ, उनको हुँ। पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी और अच्छी हमसायगी के जो जो रवाज है, जो एटिकेट्स हैं, वो उनके बारे में उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा। जी। जी। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि वो मामलात को टालना चाहते हैं, क्या इसकी वजह ये है कि वहाँ पे स्टेक होल्डर्स एक से ज़्यादा हैं? मतलब तालिबान भी हैं, आईएसकेपी है, नॉर्दर्न अलायंस है, तो वो एक अंदरूनी रिफ्ट जो है वो मामलात को हल की तरफ नहीं जाने दे रही? मेरा नहीं ख़्याल कि वो अगर पाकिस्तान के साथ और ख़ासकर इसमें टीटीपी को कंट्रोल करना हुँ, आप हुँ। ये कहते हैं जी हम जो है पश्तूनवली कोड के तहत उनको हमने पनाह दिया हुआ है। वो सर आँखों पे आप ज़रूर कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो मेहमान है यानी टीटीपी, वो आपकी मेज़बानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पे हुँ, हमला करे, हुँ, हुँ, पाकिस्तान हुँ। की चौकियों पे हमला करे। हुँ, ये हुँ। उस मेहमानी का नाजायज़ फ़ायदा है, इसकी तरफ उनको तालिबान हुकूमत को तवज्जो देनी पड़ेगी। जी।
ابھی سر ریسنٹلی ایک انٹرنیشنلی بھی بڑا کانڈمنیشن آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم ان این جی اوز کو کام کی اجازت نہیں دیں گے جو خواتین جن میں کام کرتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کی پالیسی ابھی بالکل نہیں بنی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے. تو بین الاقوامی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبان گورنمنٹ کی جو لیجٹمیسی ہے وہ اس میں تو پھر بہت ٹائم لگے گا؟ یہ سوال آپ کو طالبان سے کرنا چاہیے میرے جی خیال جی میں. جی 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 یہ اس کا جواب تو میں ان کے بہاف پہ تو نہیں دے سکتا، جی جی. لیکن بہرحال انٹرنیشنل کنسرن ہے، پاکستان میں بھی کنسرن ہے. جی یہ بتائیے کیونکہ سر کہ آپ کی کیا ایڈوائز ہے ابھی جو اس وقت موجودہ کشیدہ صورتحال ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر وہ اقدامات لینے چاہیے جس سے ٹیمپریچر کم ہو سکے، اور اس میں جو دونوں ملکوں کی بھلائی ہے عام لوگوں کی اس کی طرف اقدامات لینے چاہیے. تجارت جو ہے وہ بڑا اچھا رول پلے کرتی ہے ملکوں کو قریب لانے میں، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور ہمیں اپنے ملک کے اندر رول آف لا جو ہے اس کو ہر صورت میں اسٹیبلش کرنا چاہیے. ہم اپنے ملک میں اپنے قوانین کا جب احترام کرنا شروع کر دیں گے تو باہر کے لوگ بھی بشمول افغان این طالبان این ٹی ٹی پی جی وہ جی. بھی اس کو رسپیکٹ کریں گے. سر آپ نے شروع میں بتایا کہ جو ان کے یہاں پہ جو سلیپنگ سیلز ہیں جب تک وہ ڈرائی آؤٹ نہیں ہوں گے تو یہ مؤثر نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پھر افغانستان سے بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے، ٹی ٹی پی ریئیکٹ کرتی ہے ان چیزوں پر. تو کرتے رہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حکومت اپنا کام کرنا چھوڑ دے. جی جی. جی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. شکریہ.